إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تعارف کا تھوڑا کریکشن کروں کہ ہمارے بھائی جو ہے وہ مجھ کو حال میں مہاراشٹر سے جڑے، میں ماضی میں جڑا ہوا تھا، اس وقت جوبیل میں رہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ میرے ذمہ ہے، سوشل میڈیا ایکٹیویزم، ہاؤ کین وی پارٹیسپیٹ۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر اب زیادہ لیکچرز کی ضرورت بچی نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی ایک پریکٹیکل عنوان ہے، ایک ایسا عنوان ہے جو کام کرنے والا ہے، جس پر بحث اور گفتگو اب تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ پوری دنیا جو ہے وہ اس میڈیا کو اور اس میڈیا کے جو پروز اینڈ کونس ہیں، اس کے جو علم ہے، اس کے جو فائدے ہیں، اس سے دوچار ہو رہی ہے۔ اور ہمارے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت کہ ہم تحریک اسلامی کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس اس میڈیا کو استعمال کرنے سے پہلے والی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت اس میڈیا کے ذریعے سے ریسیونگ اینڈ میں زیادہ ہے۔ تو یہ جو سچویشن ہے یہ عموماً ان قوموں کے ساتھ ہوتا ہے جو قومیں لیڈرشپ کے رول میں نہ لینے کی بجائے وہ غلامی کی پوزیشن میں رہتی ہیں۔ تو جب بھی کوئی قوم اس فیز سے گزرتی ہے، اس کے ساتھ یہ فینومینا رہتا ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ خالی یہی میڈیا نہیں ہے بلکہ مین اسٹریم میڈیا میں بھی ہمارا وہی حال ہے۔ کم از کم اتنا تو ہوا ایک لمبے عرصے کے بعد کہ ہم جو مین اسٹریم میڈیا کو لے کر رونا دھونا کر رہے تھے 20 سال سے، بار بار یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی اپنا چینل نہیں ہے، کوئی میڈیا نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس ہماری کوئی بات رکھنے والا نہیں ہے، اور ہمارے ریچ سے باہر ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی میڈیا میں پارٹیسپیٹ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ نعمت ہمارے سامنے لے آئی۔ اگین ویسٹ نے اس کو انٹروڈیوس کیا انسانیت کے سامنے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گیا۔ مجھے یاد ہے آج سے 10-15 سال پہلے لوگ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ یا اس جیسے جتنے یوٹیوب وغیرہ وغیرہ جو بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز تھے، اس پہ اپنی ممبرشپ رکھنا، اس کو یوز کرنے کے تعلق سے کافی پس و پیش میں تھے۔ کچھ لوگ تو شران بھی اس کو غلط سمجھ کے فیس بک پہ اپنا اکاؤنٹ ہی نہیں کریٹ کرنا چاہتے تھے۔ جب واٹس ایپ آیا اس کے بعد یہ تھوڑا معاملہ تھوڑا بدلا، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں یہ ایک ایسا وائبرنٹ میڈیا ہے جس نے مین اسٹریم میڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ گو کہ مین اسٹریم میڈیا آج بھی پولیٹیکلی ایک طرح سے سب سے زیادہ یوزفل میڈیا مانا جاتا ہے، لیکن اگر آپ جو لاسٹ الیکشن ہندوستان میں ہوا تھا، جو مودی کا کیمپین تھا، اس کیمپین کو اگر آپ کی نظر میں ہو آج سے 2.5 سال پہلے جو حالات تھے ہندوستان میں، اور اس کیمپین کے لیے جو پریپریشن تھا RSS بی جے پی والوں کا، اور اسپیشلی اس میڈیا کا جو استعمال انہوں نے کیا تھا، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، وہ اسٹیٹکس اور وہ ڈیٹا کہ بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے جو ہے اس میڈیا کا استعمال کیا، اور کانگریس سمجھ بھی نہیں پائی بائی دا ٹائم وہ
समझ पाते, उन्होंने शहर में बसने वाले जो अर्बन जो वोट बैंक था और जो यूथ वोट बैंक था उसको कैप्चर कर लिया, और जब तक वो समझ पाते उनके हाथ से गाड़ी निकल चुकी है। यही कुछ जो है इस वक्त ट्रेंड चल रहा है। और अभी जो नोटबंदी का मामला चल रहा है, इसमें भी अभी ये जो मुख्तलिफ किस्म के सर्वेस किए जा रहे हैं और जो कुछ भी कहा सुना जा रहा है, और आप देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप पे जिस किस्म की पोस्टिंग्स आती है और जो फेसबुक पे, चूँकि हमारे साथ एक मसला ये है कि हम लोग हमारे मुस्लिम भाइयों पे कनेक्टेड ज़्यादा रहते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स से कनेक्टेड ज़्यादा रहते हैं, तो हम लोगों को वो बातें ज़्यादा सुनाई नहीं देती। हम तो अपनी वही जो मोदी के नेगेटिव खबरें हैं उसको ज़्यादा देखते हैं। लेकिन अगर आज आप देखें तो बड़ी तेज़ी के साथ इन्होंने जो है इसमें बड़े फैसले को भी, डिमोनेटाइजेशन के, उसको भी जो है अपने हाथ में इस्तेमाल किया। और जो कुछ भी महाराष्ट्र और गुजरात के जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस के जो आए जो रिजल्ट आए वो उसके आप लोगों के सामने। हालांकि हम सब का कैलकुलेशन ये था कि शायद इसका असर ये होगा कि मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। तो भाइयों, सोशल मीडिया जो है वो अब एक्टिविस्ट लोगों के लिए बहुत बड़ा हथियार बन चुका है, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो रिलीजियस एक्टिविस्ट हो, और लोग उसको भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसोस ये है कि हम जो है वो अभी तक के उसको ना समझ पाए, और हमें से जिन लोगों ने इसको समझा है वो बहुत कम हद तक के अभी तक उसको इस्तेमाल कर सके। बेसिकली ओपिनियन बिल्ड करने के लिए ये मीडिया सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है, और जो लोग इसके साथ खूब हैं उनका कैलकुलेशन ये है कि उम्मन जो लोग 50 साल और 60 साल क्रॉस कर चुके हैं, एटलीस्ट 40 अबव जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा इस मीडिया से अटैच नहीं रहे, और उनका जो है वो से अभी सोसाइटी से कम होता जा रहा है। तो जो यूथ है उसको जो है टारगेट बनाया जाए, और वो फ्यूचर की लीडरशिप है, उनके अंदर जो है किसी ओपिनियंस को बिल्ड किया जाए, चाहे वो ओपिनियन जो है वो एंटी मुस्लिम हो, चाहे वो ओपिनियन एंटी माइग्रेंट हो, जो जिस किस्म का भी ओपिनियन वो बिल्ड करना चाहे वो करना चाहते हैं। तो ये सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा रोल इस वक्त जो चल रहा है वो ये कि वो ओपिनियंस को बिल्ड करता है। दूसरी चीज़ ये कि वो अपनी आइडियोलॉजी की तरफ, अपनी बात की तरफ लोगों को बुलाते हैं उसके जरिए से। तीसरी बात ये कि ये जो है अपना एक ऑडियंस क्रिएट करते हैं, अपना एक फॉलोअर्स का ग्रुप क्रिएट करते हैं अपने फ्रेंडशिप्स के जरिए। आप देखे होंगे जो ट्विटर के फॉलोअर्स हैं, जो फेसबुक के फॉलोअर्स हैं, और जो सेलिब्रिटीज के फॉलोअर्स बन जाते हैं ये, तो वो सेलिब्रिटीज को यूज करके किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लिए, किसी पर्टिकुलर थॉट के लिए, अपने व्यूज के लिए लोगों को जो है अपने फॉलोअर्स बनाते हैं। और आज जो है इसका ट्रेंड बहुत कॉमन है। फिर ये कि अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए भी जो है वो ये इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोग एनआरआईज के हैसियत से मुसलमानों की और इस्लाम के पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग सोचें तो हम लोग बैक होम इंडिया में मुसलमानों की कम्युनिटी बिल्डिंग के ताल्लुक से सोशल मीडिया का इस्तेमाल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करते हैं। लेकिन कोई अमेरिकन हिंदुओं से पूछें या एक जुबेल और दमाम में रहने वाले किसी हिंदू से पूछें तो वो जो है वो दमाम और बहरीन और न्यूयॉर्क में बैठकर इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता है अपनी कम्युनिटी के बैक होम कम्युनिटी बिल्डिंग की एक्टिविटी के लिए। तो ये इस वक्त जो है वो बहुत बड़ा टूल है। और उसके अलावा ये लोग मुख्तलिफ कैंपेन्स चलाते हैं, तो ये कैंपेन अगर उनको चलाना होता है तो उसके लिए जो है वो भरपूर इस मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग जितने नेगेटिव कैंपेन्स पिछले 2-2.5 साल में, स्पेशली ये जब से मोदी की हुकूमत आई है, मुसलमानों के खिलाफ जितने कैंपेन किए गए वो सारे कैंपेन्स जो है शुरू में ही कैंपेन्स रहे और बाद में वो रोड पर जो है आए। पहले ओपिनियंस को बिल्ड किया गया, मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें उड़ाई गई। मैं नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कैंपेन रन किए जाते हैं और ये कैंपेन जो है बेसिकली इसको आज लीड इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है और सोशल मीडिया के थ्रू इसको लीड किया जाता है।
भाइयों, आप लोगों को एक स्लाइड में मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट, ये जो मीडिया है, 6,84,000 अप्रोक्सीमेटली pieces of contents are shared on Facebook every minute। एक मिनट में इतना कंटेंट 648,000 pieces of content शेयर किया जाता है within 1 minute। Within 1 minute Facebook gets over 6 million views। एक मिनट में 6 लाख लोग, 6 मिलियन लोग, 60 लाख लोग फेसबुक को रीड करते हैं। तकरीबन 100,000 ट्वीट्स जो है एक मिनट में किए जाते हैं। तकरीबन 320 प्लस ट्विटर अकाउंट्स एक मिनट में बनते हैं, नए ट्विटर अकाउंट्स। और तकरीबन 3,600 फोटोज जो है इंस्टाग्राम पे शेयर किए जाते हैं विदिन 1 मिनट। तो भाइयों, ये जो डेटा है ये मैंने कहीं से प्रोड्यूस नहीं किए, बल्कि ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप अगर देखें तो आज का सोशल मीडिया कितना फास्ट है कि विदिन 1 मिनट दुनिया में इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ 2 और 3 प्लेटफॉर्म्स पे शेयर हो जाती है। मैंने इसकी आप जो व्हाट्सएप करते हैं उसकी डेटा नहीं लाई, बहुत सारे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें बहुत कुछ हो रहा है। तो भाइयों, ये इतना पावरफुल मीडिया बन चुका है। अब हम लोग यहाँ पर हमारी बात को कम्युनिकेट करने के लिए 60 और 70 लोगों को जमा किए और पूरा दिन जो है उस पर हम लोग उसके लिए एफर्ट लगा रहे हैं। ये एक ऐसा मीडिया है जिसमें आप विदिन सेकंड जो है वो लैक्स एंड करोड़ लोगों तक के बहुत आसानी के साथ पहुंच सकते हैं और दुनिया आज इसका इस्तेमाल कर रही है। ये जो रिवॉल्यूशन है, इस रिवॉल्यूशन को कैच किए बगैर अभी हम सब लोग उसके बगैर जी नहीं सकते। मैं कुछ बातें 2 स्लाइड में इसके नतीजे में जो सोसाइटी के समाज पे जो बुरी चीजें आई है, इसके जो प्रॉज हैं और जो उसके कॉन्स है, उस पर बताना चाहता हूँ। सिर्फ फेसबुक को के जरिए से जो चीजें हम देखते हैं कि जो न्यूज को स्प्रेड किया जाता है और जो स्टेटस अपडेट वगैरह जो कुछ किया जाता है, ये आप देखते हैं कि लोग कोई एक रॉन्ग स्टोरी को डालते हैं और लोग उस स्टोरी को फॉलो करना शुरू करते हैं और अननेसेसरी जो है वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि लोग जो है अपने सपोर्टर्स को रिक्रूट करते हैं इसके अंदर। फिर ये है कि ये लाइक्स वगैरह के जरिए से उसका माहौल बनाया जाता है, फिर जो है वो एंगेज किया जाता है और फिर उनसे जो है ओपिनियन बिल्ड किया जाता है। भाइयों, एक ट्विटर के जरिए से मैं आपको ये बताऊं कि ट्विटर के अकाउंट के जरिए से इस वक्त मुसलमानों के अंदर एक बड़ा, फेसबुक पर तो मैंने इतना ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन ट्विटर के हद तक की मैं ये बात कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में भी मुस्लिम यूथ जो है वो ट्विटर अकाउंट को यूज़ करना शुरू किए और स्पेशली वेस्ट में और यूएस और यूके के अंदर बाकायदा इस पर जो है वो एक ग्रुप, कई ग्रुप्स अब खड़े हो गए हैं जो हमारी इवेंट्स और एक्टिविज्म को जो है ट्विटर के थ्रू शेयर कर रहे हैं। ये सारी बातें जो हम लोग जानते हैं, रीट्वीट किया जाता है और इसलिए कि मैं इस पर अब ये जो है जो उसकी जो नेगेटिव साइड है वो अब मैं बताना चाहता हूँ, उसकी जो काम है। टाइम कंज्यूमिंग है, इमीडिएसी है, इमोशनल है, प्राइवेसी और इम्पर्सनेट है। लोगों की पर्सनल जिंदगी में इसने काफ़ी दखल दिया है। अभी हाल ही में कुछ सर्वेज आए हैं और कुछ जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो इतने डिस्टर्बिंग है सोशल मीडिया को लेके कि स्पेशली जो बच्चे हैं और जो स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनके यहाँ फेसबुक का इस्तेमाल, व्हाट्सएप का इस्तेमाल और इसके ज़रिए से जो उनकी पूरी साइकोलॉजी जो नेगेटिव तरीके से डेवलप हुई है। चाइना में तो यहाँ तक के हुआ है कि उन लोगों ने अपने उन बच्चों को जो इसके एडिक्ट हो चुके हैं, जिस तरह से ड्रग एडिक्शन होता है उसी तरीके से जो है सोशल मीडिया का एडिक्शन हुआ है और वो लोगों ने बीजिंग और शंघाई के बाहर कैंप्स
कैंप्स लगाने शुरू किए हैं। जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में जो ड्रग एडिक्ट्स बच्चों के यूथ के लिए उनके रिहैब सेंटर बनाए जाते हैं, जहाँ उनको रिहैबिलिटेशन में ले जाया जाता है, 1 महीने तक के डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। वही सेम प्रोसेस अब ये लोग इसके लिए कर रहे हैं। और अब जो इस वक्त मामला है कि 2-2 हज़ार एक कैंप में बच्चे रखे गए, उनको इंटरनेट से दूर रखा गया है और पूरा 1 महीना उनको जो है किसी इलेक्ट्रॉनिक इससे गैजेट से दूर रखा जाता है। सुबह एक्सरसाइज कराई जाती है और ये उनको डिटॉक्सिफाई कराया जा रहा है। तो ये जो इसका जो नेगेटिव इफेक्ट जो समाज और सोसाइटी पे आया है, वो हम लोग अपने घर में देख सकते हैं कि हमारे 2 बच्चे अगर हमारे घर में हैं तो एक सोफे पे बैठा है, उसके हाथ में एक गैजेट है, और एक दूसरे चेयर पर बैठा है, उसके हाथ में दूसरा गैजेट है, और वो आपस में जो पहले बहन भाई या भाई भाई आपस में खेल कूद किया करते थे, वो कम हो गया। और वो लोग जो है वो अपने उस गैजेट के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारे यहाँ हमारे घरों में भी अब जो है वो इसका नेगेटिव असर आना शुरू हो गया है। तो ये तो अपनी जगह है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जहाँ ये मीडिया पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल हुआ है, वहीं इसके मीडिया के जरिए से हमारी फैमिली लाइफ और हमारी सोशल लाइफ में भी बड़े काफी डिस्टर्बेंसेस ने पैदा किए। अब जो है मेरी गुफ्तगू का जो दूसरा हिस्सा है कि हाउ कैन वी पार्टिसिपेट, यहाँ से जो है मैं आपको, क्योंकि इंट्रोडक्शन के सिलसिले में ऐसा है कि हम में से तकरीबन सब लोग जानते हैं कि क्या ये सोशल मीडिया करता रहा है। सबसे पहले तो ये कि अगर हम में से जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ हम लोग जो है वो अपने तहरीक इस्लामी के इस काफिले को आगे ले जाने के लिए जो हमारे जो पिछले 40 और 50 साल से जो हमने जो फॉर्मेट्स इस्तेमाल किए हैं, वही फॉर्मेट्स के जरिए से हम लोग आगे की जर्नी भी वैसे ही कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। यहाँ आने वाले दिनों में जो ट्रेंड्स हम लोग नजर आ रहे हैं, उससे ये समझ में आता है कि अंटिल अनलेस हम लोग ये मीडिया को इस्तेमाल करें, हम अपने उस मैसेज को मासेस तक के ले जाने में नाकाम रहेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि हमें जो है कनेक्ट होना पड़ेगा सोशल मीडिया से। अब भी मैं कुछ लोगों को देखता हूँ और वो लोग अपने तरफ पे पूरी दलाल रखते हैं कि वो पुराना सा एक जो नोकिया का फोन रखते हैं और कहते हैं भाई मैं ये जो आपका जो स्मार्टफोन है वो इस्तेमाल नहीं करता, मुझे जो है वो इससे कोई लेना देना नहीं है। या ये कि वो ये कहते हैं मेरा फेसबुक पे कोई अकाउंट नहीं है, या ये कहते हैं कि मैं कोई जो है वो व्हाट्सएप पे कोई वीडियोस या व्हाट्सएप का कोई वो देखता ही नहीं। तो ये हम जैसे लोग जो लोग एक्टिविस्ट हैं वो एफोर्ड नहीं कर सकते आज के ज़माने में, इसलिए कि अगर हम लोग ये रवैया ले लें तो उसके बाद ये कि हम खुद अपने तहरीक के कारकुनों से कनेक्ट नहीं रह पाएंगे, हम खुद अपने घर वालों से कनेक्ट नहीं रह पाएंगे, हमें तो सोसाइटी से कनेक्ट होना है। तो सोसाइटी से कनेक्ट होने के लिए हमें जो है वो इस वक्त का जो मीडिया है, इस वक्त का जो वो है, उसके जरिए ये सोशल मीडिया के जरिए ही हम लोग कनेक्ट रह सकते हैं। दूसरी बात ये कि हम दिन में कुछ वक्त जरूर इसके लिए निकालें जिसमें हम जो है वो, अगर हम ये समझते हैं कि हमको सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनना है और हमें इस काम में अपना पार्टिसिपेशन पेश करना है, तो हम कुछ वक्त निकालें जिसमें हम लोग कुछ ट्वीट कर सकें, कुछ चीज़ें फेसबुक पे कुछ पोस्ट डाल सकें, या व्हाट्सएप के जरिए से कोई मैसेजेस यहाँ से वहाँ पहुँचा सकें, या कोई डिस्कशन और डिबेट चल रही है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। तो कोई ना कोई वक्त दिन में जो है हमें उसके लिए निकालना पड़ेगा। जबकि हकीकत ये है कि हम लोग एक बड़ा वक्त आजकल व्हाट्सएप के वीडियोस देखने पे सर्च करते हैं, व्हाट्सएप की पोस्टिंग्स पढ़ने पे सर्च करते हैं। हमें से बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जोक्स पढ़ने पे अपना टाइम निकाल देते हैं और अजीब व गरीब किस्म की इतनी फजूल किस्म की बहसें होती है, उस पर हम लोग जो हिस्सा लेते हैं। लेकिन फॉर द कॉज ऑफ दीन, फॉर द कॉज ऑफ मूवमेंट, अगर हम उसमें से 15 मिनट 10 मिनट निकालने की आदत डालें तो इंशाल्लाह जो है हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है जो ट्रेंड्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसको समझने की जरूरत है। अगर हम वो ट्रेंड्स को नहीं समझ रहे तो हम जो है वो पीछे रह जाएंगे उस पूरी स्ट्रगल में, क्योंकि इस वक्त जो राइट विंग एक्टिविस्ट, चाहे वो अमेरिका का हो चाहे वो हिंदुस्तान का हो, इस वक्त तो फ्रांस में भी बातें चल रही है और स्पेन में भी बातें चल रही है,
इस वक्त पिछले 2-5 साल में जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, इस वक्त राइट विंग की पार्टियों को जो है उनको उरूज हासिल हो रहा है। वो लोग जगह जगह जो है वो अपनी बातें लोगों के दरमियान लाकर लोगों को अपनी तरफ जो है वो राग़िब करने में कामयाब हो रहे हैं और लोग उनकी पार्टियों को वोट डाल रहे हैं। तो वो जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जैसे भी एंटी इमिग्रेंट्स ट्रेंड चल रहा है, या ये हिंदुस्तान के अंदर जो है नेशनलिज्म के नाम पे एंटी नेशनल बताना हर चीज को, हर वो चीज जो बीजेपी और आरएसएस वालों के उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस के खिलाफ जाती हो, उसको एंटी नेशनल खाते में डाल देना, ये इस वक्त का सोशल मीडिया का ट्रेंड है। तो वो ट्रेंड्स को समझना और फिर वो ट्रेंड्स का जवाब देने के लिए प्रॉपर डेटा को कलेक्ट करना, ताकि हम उसको सही से जवाब दे सकें। तो डेटा कलेक्शन जो है वो हम सिर्फ जज्बाती अंदाज से उसका जवाब नहीं दे सकते। We need to be properly prepared so that we can answer. दूसरी चीज ये कि इसका आंसर जो है हम जो है वो क्रिएटिव तरीके से दें। अगर हम लोग बहुत भोंडे तरीके से इसका जवाब देना शुरू करें और जो भोंडा तरीका वो लोग इस्तेमाल करते हैं वही हम भी इस्तेमाल करना शुरू करें, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये सही बात नहीं होगी। वैसे तो दाई हमारा जो मकाम है और जिस लेवल पर हम खड़े हैं, वहाँ से हम जो है वो अपने मकाम से उनको एड्रेस करें, ना कि उनके लेवल पे जाके जो है वो भोंडे तरीके से उसका जवाब दें। तो हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा। अभी आप लोगों के पास इस किस्म के वीडियोस आते होंगे जिसमें आप देखते हैं कि ग्राफिक्स के अंदर इस्लाम की छोटी छोटी चीजों को समझाया जाता है, खुसूसियत के साथ वेस्ट से बनकर आते हैं, ब्यूटीफुल ग्राफिक्स के अंदर बनकर आते हैं। 2 से 3 मिनट के वीडियोस होते हैं, 2 से 3 मिनट की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है और वो बहुत क्विकली जो है आपको किसी एक सब्जेक्ट को आंसर करता है। उसी तरीके से कोई एक ट्रेंड है जिसका जो बिल्कुल ही जो है सोसाइटी और समाज के लिए नेगेटिव है, उसको पॉजिटिवली जो है वो हम लोग उसका मैसेज कैसा दिया जा सके, उसके लिए कोई पॉजिटिव वीडियो क्रिएट किया जाता है और अपलोड किया जाता है। तो हमें जो है क्रिएटिवली इसका जवाब देना चाहिए और ये हमारे आज की जरूरत है। उसके अलावा मासेस में इसको ले जाने के लिए मुख्तलिफ ई टूल्स अवेलेबल हैं। आप लोग जानते हैं कि जो लोग आईटी की फील्ड से जुड़े हुए हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं कि किसी वेबसाइट की हिट को बढ़ाना है, उसके व्यूअरशिप को बढ़ाना है, तो वो किस तरीके से उसको जो है वो गूगल के सर्च के अंदर उसको हाईएस्ट सर्च में लेके जाते हैं और किस तरह से लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें, उसमें जो है वो वेरियस ई टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ये ई टूल्स जो है बहुत तेजी के साथ वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हाल में एक ऐप जो है 92% मोदी ने जो डिमोनेटाइजेशन के लिए डाला था और एक दिन के अंदर उसने कहा कि हम लोगों को उसको जो है 92% हिंदुस्तान के शहरियों ने कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला है। ये बेसिकली ई टूल्स को इस्तेमाल करते हैं ये लोग और उसके नतीजे में ये लोग अपने परसेंटेज को जो है वो बढ़ाते हैं। तो वी शुड नो हाउ टू यूज द ई टूल्स, क्योंकि वो उतने ज़्यादा लोगों तक के इमीडिएटली कनेक्ट होता है। उसके अलावा हम लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, अपने जानने वालों को इस नेटवर्क में कनेक्ट करने की आदत डाल लें। हम जो है अपनी हद तक के इस बात को रखने की बजाय ये नेटवर्क को एक्सपांड करते चले जाएं। अगर हम लोग ये नेटवर्क हमारा एक्सपांड नहीं करेंगे तो हम अपनी दावत को जो है दूसरों तक के नहीं ले जा पाएंगे। ये जो स्लाइड है ये मैं उन लोगों के लिए बेसिकली एक दावत देना चाहता हूँ कि जो लोग इसमें रियली कुछ करना चाहते हैं। अगर बहरीन की हद तक के आप लोग ये समझते हैं कि बहरीन की जमात की जो टीम है ये कुछ करना चाहती है नेट से, तो आप एक छोटी टीम बनाएं और उस टीम में आप में से कोई कंटेंट राइटर का रोल ले। मैं कुछ प्रैक्टिकल मशवरे आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि ये काम करने के लिए क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये काम डूएबल नहीं है। इसको करने के लिए छोटी छोटी चीजें हमको करनी पड़ेगी। हम में से कुछ लोग हैं जिन लोगों को छोटे छोटे कैप्शंस में लिखने का फन है,
जो कंटेंट राइटर्स हैं, चाहे वो उर्दू में हो, हिंदी में हो, और कोई लैंग्वेज में हो, इंग्लिश में हो, अगर आपकी टीम में अगर कोई कंटेंट राइटर आप क्रिएट कर सके छोटे मैसेजेस बनाने के लिए या स्टोरीज लिखने के लिए, तो मैं समझता हूँ ये जो है आपकी टीम का इमीडिएटली एक फर्स्ट जो स्टेप है वो ये है। दूसरी चीज ये कि हम लोगों को बहुत सारा डेटा जो है वो कलेक्ट करना पड़ता है। आपको क्या लगता है तो कोई न्यूज रीडर आके खड़ा होता है और एक 5 मिनट के अंदर कोई एक टॉपिक के ऊपर जो बहुत सारी बातें बोल देता है या 3 मिनट में कुछ बातें बोल देता है, तो वो उसके पास किसी ने रिसर्च करके पूरी डेटा को कलेक्ट किया है और उसको एक स्क्रिप्ट बना के उसके सामने पूरे नंबर्स और फिगर्स के साथ रखा है। तो जो लोग रिसर्चर्स होते हैं उसके अंडर में किसी एक न्यूज आइटम को लाने के लिए, किसी एक चीज को मीडिया में आउट करने के लिए, उसके लिए 8 से 10, 4 से 5 वो रिसर्चर्स होते हैं जो सोसाइटी और समाज में जा जाके डेटा को कलेक्ट करते हैं, इंटरनेट से डेटा को कलेक्ट करते हैं, बुक से डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको ला के स्क्वीज करके एक छोटे 2 पेज पे और 1 पेज पे उस न्यूज रीडर के सामने या उस एंकर के सामने रखते हैं। तब जाकर जो है वो एंकर उस बात को पेश करता है। इट डजंट मीन कि बरखादत अगर कोई बात कह रही है तो उसके मेमोरी में जो है वो सारी बातें हैं और वो आके इमीडिएटली सारी बातें कह रही है। कोई भी जर्नलिस्ट, वो इस वक्त का सबसे हाईएस्ट जिसका कैलिबर जर्नलिस्ट हो, या है कि जो कंटेंट हमारे न्यूज मीडिया पे डाला जा रहा है, पब्लिश हो रहा है, वो सारा जो है जो एडिटर जो कुछ भी लिख रहा है उसके पीछे बहुत सारे रिसर्च के लोग हैं, जो फुट सोल्जर्स हैं, जो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, जो छोटी छोटी लड़कियां हैं और वो जा रही है समाज से, सोसाइटी से उस पर्टिकुलर टॉपिक पे डेटा कलेक्ट करके लाके उनको देती है। तो हमारे टीम में हम लोग जो है कुछ लोगों को रिसर्चर बनाएं, उनको ट्रेन करें कि किसी एक टॉपिक पे किस तरह से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तीसरी बात ये कि हमारे दरमियान माशाल्लाह कोई ना कोई हाफिज़ कुरान होता है। हमारे दरमियान कोई ना कोई ऐसा होता है जो जिसको अहादीस बहुत याद होती है। देखिए, जब आप कोई एक मैसेज को क्रिएट करने जा रहे हैं और आपको रेफरेंसेस नहीं पता है, तो आपकी टीम में अगर कोई हाफिज़ कुरान है तो वो टीम जो है उसमें उनका इमीडिएट रेफरेंसेस मिलने के लिए आपको आसानी होती है। अदरवाइज आजकल की टूल्स इतने ज्यादा आसानी से अवेलेबल है, बहुत सारी पुरानी सर्च साइट और वेबसाइट्स अवेलेबल है जिसमें आप चीजें ला सकते हैं। लेकिन आपके टीम मेंबर में अगर वो हो तो इट विल बी रियली क्वालिटी वर्क। दूसरी बात ये कि हम में से हर एक को कैमरा चलाने आता है। अभी हमारे भाई बहने कैमरा चला रहे हैं, तो कैमरा चलाना तो आजकल कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि हम वो कैमरा खरीदते हैं जो कैमरा जो है आज से 10 साल या 15 साल पहले आउटडेट हो चुका है। अब वो उसका जो आउटपुट होता है, वो आउटपुट जो है डिजिटल आउटपुट आप फेसबुक या यूट्यूब पे डालते हैं तो वो जो रिक्वायर्ड क्वालिटी है वो हम दे नहीं पाते। तो हम थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का अगर कैमरा खरीदें और हमारी टीम में सिटी के लेवल पे कैमरा एफर्ट तो हम लोग कर ही सकते हैं और वो जो है वो डिजिटली थोड़ा सा ऐसा आउटपुट दे सके जो हम लोग यूट्यूब वगैरह पे उसके वीडियोस डाल सकें। लेकिन हम में से एक या 2 लोगों को कम से कम इसके लिए अच्छे से कैमरा ऑपरेट करने की ट्रेनिंग हासिल होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे अभी ये कैमरा लगा है, मेरे सामने खड़ा हूं, अगर मेरे फेस पे लाइट नहीं है और मेरे बैकग्राउंड में ये 4-5 चीजें हैं तो इसका आउटपुट जो है वो इस ऑलमोस्ट इसे कोई काम का नहीं। ये जो है आपके किसी वीडियो में चढ़ नहीं सकता। एक बेसिक चीज है, क्योंकि हम अभी तक के उस बूट में अपने आप को डाले नहीं है, अभी तक के उसको उस हैसियत से देखना शुरू नहीं किए, तो हमने उस पर कोई रिसर्च नहीं किया, कोई उसकी डेटा हमको हासिल नहीं है। तो जो है अगर हम लोग ब्लू बैकग्राउंड डालते हैं तो फिर उसके पीछे हम कोई भी फोटो डालकर जो है वो ऐसा दिखा सकते हैं कि मौसम जो है ताजमहल पे खड़े रह के तस्वीर कर रहे हैं। तो ब्लू कपड़ा डाला जाता है ताकि जो है वो हम दूसरे फोटोज को डालें, अब व्हाइट कपड़ा डाला जाता है ताकि कोई और चीज आए। उसी तरीके से प्लेन होना चाहिए, उसी तरीके से स्पीकर और जहाँ पर कैमरा लगा हुआ वहाँ पे कम से कम 4-5 एक्स्ट्रा लाइट होना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हम लोग नहीं समझ पाते, जो हमको करना चाहिए। और कोई भी वीडियो हम YouTube पे अभी समझो 3 मिनट का एक क्लिपिंग हम एक कैंपेन लेटेस्ट से बैलेंस की सतह पे करना चाह रहे हैं
पीस एंड ह्यूमैनिटी कैंपेन के तहत, और हमने तय किया कि हम जो है 3-3 मिनट की 6 वीडियो बनाएंगे और इस कैंपेन के लिए मैसेज यहाँ से अपलोड करेंगे। तो अब आपको शूट करना पड़ेगा, शूट करके उसको एडिट करना पड़ेगा, उसको एनिमेशन डालना पड़ेगा। तो ये सारे काम हम लोग बहुत आसानी से हमारी अपनी टीम में से लोगों को इन्वॉल्व करके कर सकते हैं। इसके लिए कोई एडिशनल एक्सपर्टीज, एक्स्ट्रा कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक मिनिमम चीजें YouTube पे अवेलेबल है। आप अगर वो YouTube पे जाएं तो आपको जो है वहां पर वो वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आप बेसिक कैमरा रिकॉर्डिंग कैसे करें। प्लेबैक टैलेंट, मैंने पहले टाइप किया था प्लेबैक आर्टिस्ट, तो मैंने उसको निकाल के उसको टैलेंट कर दिया। आप लोग बोलेंगे यार मतलब जो है किसी गाने वाले को यहाँ पे खड़ा करना चाहता है। तो भाइयों, हम में से अगर कोई लोग जिनके अंदर ये सलाहियत हो कि उनकी आवाज बहुत अच्छी हो, और हमारे ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं जो लोग बहुत अच्छी आवाज दे सकते हैं, उनको कैमरे पे सामने आने की जरूरत नहीं है, उन्होंने पीछे से बैकग्राउंड में आवाज देना है। आपने आरजे नवेद के ऑडियोज देखे होंगे, देखा है कि नहीं किसी ने? दिल्ली में जो है वो रेडियो मिर्ची का वो जॉकी है, और वो मरकज के कैंपेन के अंदर उसने खुद आके अपनी प्रोग्राम भी अटेंड किया है। तो छोटे-छोटे 2-2 मिनट के 3-3 मिनट के व्हाट्सएप पे क्लिपिंग्स आपको आरजे नवेद में मिलेंगे जो सोशल मैसेजेस कम्युनिकेट करता है। तो भाइयों, हमारे दरमियान भारी आवाज, बेस जिसका साउंड का अच्छा हो, ऐसे लोग मौजूद हैं। हमें उनको जो है सिर्फ उस रोल में लाने की जरूरत है। उनको स्क्रिप्ट देना है, उसमें उस बंदे ने पढ़ना है, उसको ट्रेन करना है ताकि वो उस स्क्रिप्ट पे पढ़ सके। फिर जो है हमारे पास क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं, क्रिएटिव टैलेंट होते हैं, जो लोग बेसिकली किसी कंसेप्ट को पूरी तरह से विजुअलाइज करके उसको डायरेक्ट करते हैं। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो कोई बड़े लेवल में डायरेक्टर हो, लेकिन एटलीस्ट जिसमें अगर थोड़ी सी क्रिएटिविटी हो तो उसको जो है हम लोग इस्तेमाल करें। फिर जो है जो लोग कैमरे के सामने खड़े रहकर किसी मैसेज को विजुअल डिलीवरी दे सके और उनके अंदर जो है वो कैमरे का फियर न हो, वो खड़े रहकर जो है वो कोई अच्छे से मैसेज को अच्छे से डिलीवरी दे सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग माशाल्लाह उनका मुताला बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम उनसे कहें कि आप खड़े रहकर उसी मुताले को, उसी नॉलेज को आप लोगों के सामने शेयर करें, तो वो नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि उनके अंदर वो सलाहियत नहीं है। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका मुताला बहुत वीक है, बहुत कुछ वो पढ़ते नहीं है, लेकिन आप उनको कैमरे के सामने खड़े करें और स्क्रिप्ट दें और अच्छी शेरवानी पहना के अच्छा बड़ा जुब्बा उब्बा पहना दें, वो बड़े मौलाना की तरह तकरीर करते हुए नजर आ जाएंगे आप। तो आप जो है उनको उस लेवल पे लाएं, उनको ट्रेन करें और आप जो है वो मैसेज को क्रिएट करने में उसको इस्तेमाल करें। वो छोटी-छोटी चीजें हम लोगों ने ये कर चुके हैं, इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस से जो है कुछ बातें बता रहा हूँ। हमारे दरमियान एनिमेटर्स होते हैं जो लोग एनिमेशन का काम करते हैं, छोटा मोटा एनिमेशन करना है। हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो वीडियो को अगर हम लोग एडिट नहीं करें और एनिमेट नहीं करें उसको प्रॉपरली, उसको कहाँ कट करना है, कहाँ पे उसको शुरू की स्लाइड लगाना है, कहाँ बाद की स्लाइड लगाना है और उसको कैसे एंड करना है, उसको पैकेजिंग अगर सही से नहीं करें, रश रॉ वीडियो को हम लोग अपलोड करेंगे तो सही नहीं है। और ये सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल है इंटरनेट, आप अपने पीसी पे उसको डाउनलोड करके वो वीडियो को कट करने के और उसके साथ में उसको एडिट करने के वेरियस सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। हम में से कोई एक आदमी अगर 15 दिन उस पर कोशिश करे तो वो वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। वेब एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए ताकि वो इन सब चीज़ों को वेरियस साइट्स पर जगह ले जाए। हम बना देते हैं, बनाने के बाद उसको कैसे अपलोड करें, कैसे उसको मासेस तक के ले जाएं, ये हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। वेब एडमिनिस्ट्रेटर को और इस किस्म के जो दूसरे टैलेंट होते हैं, IT टैलेंट, उनको अच्छे से पता होता है। एक बात मैं और कहूँ कि हमारे को और कुछ और दो दिन टिप देके इंशाल्लाह मैं अपनी पुस्तकों को खत्म करूँगा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम लोग जो है अपने इससे छोटी अगर काम हम लोग करना चाहते हैं तो कमेंट
पोस्ट करना शुरू करें फेसबुक पे। अगर हमें कोई वाकया हुआ आज रात में और आपने न्यूज़ में देखा और आपको ऐसा लग रहा है कि इस वाकये पे कुरान मजीद की फलानी आयत जो है वो बहुत सूट करती है, उसको वो रिलेट कर सकते हैं आप, तो आप उसको उन आयतों को पोस्ट करें, उन वाकयात की फोटोज डालें, वो फोटो पे उस आयत को पंच करें और उसको पोस्ट कर दें। ऐसे किस्म के मैसेजेस इस वक्त जो है लोग बड़ी तादाद में लोग दे रहे हैं। हदीस पोस्ट कर सकते हैं आप, फेसबुक पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ट्विटर पे कर सकते हैं। आगे वो जो मैंने बात की, किसी फोटो पे कुरान की आयत को लगाएं, उसको भेजें। आप बैलेंट्री सतह पे एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस, ई प्रोडक्शन हाउस क्रिएट करें, कोई उसको कहीं रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, और वो छोटी यूनिट जो है छोटे छोटे टास्क लें और करना शुरू करें। मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने देहरान यूनिवर्सिटी में, KFUPM देहरान यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप आज से 7-8 साल पहले की बात है, IT में काम करने वाले MS के स्टूडेंट्स थे। हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई क्या कर सकते हो, उन्होंने कहा भाई हम लोग दर्द वगैरह ये तो नहीं दे सकते, दूसरा हमारे लायक कोई काम हो तो बताइए। तो हमने उनसे कहा कि एक काम करो, जितनी PPTs अवेलेबल है इस्लाम के मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, उसको पूरा सर्च करके उसका एक डेटा बैंक बना। 320 कुछ PPTs जो है वो ग्रुप ने 1 महीने के अंदर निकाल कर लाई, गूगल के थ्रू, यहाँ से वहाँ से। फिर उसमें से जो PPTs उनसे कहा गया कि इसमें से जो PPTs आपको लगती है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसको एज इट इज हम लोग वेबसाइट पे डाल सकते हैं, उसको एक वेबसाइट पे डाल दें, और जो PPTs को फर्दर एनहांस करने की जरूरत है उसको एनहांस किया जाए। और वीकली एक PPT बनाने का टास्क हमने बनाया और लोगों से कहा कि एनवायरनमेंट इस्लाम ये टॉपिक पे एक हफ्ते में सब लोग काम करें और एक PPT बनाएं। बनाने में इस तरह से हम लोग every week 1 PPT बनवाते थे और उसको साइट पे अपलोड करते हैं। तो ये जो है इस किस्म के ई ग्रुप्स हम लोग बना सकते हैं जो बैक होम हिंदुस्तान में तहरीक इस्लामी की जो मुख्तलिफ एक्टिविटी हो रही है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट लिखें, उसको कैमरे के सामने रिकॉर्ड करें, उसको प्रॉपरली सिस्टम पर एडिट करें, उसके आगे पीछे एनिमेशन लगाएं और फिर उसको YouTube पर अपलोड करें और उसको जो है वेरियस ग्रुप्स के अंदर उसको जो WhatsApp के और उसके ग्रुप्स है उसके अंदर उसको फ्लैश आउट करें, उस कैंपेन को रन करें। भाइयों, ये अगर हम लोग इस पर्सपेक्टिव में अपनी तहरीक को इस एडवांस स्टेज पर लेकर जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हम लोग ये जो चैलेंज है सोशल मीडिया का उसका जवाब दे पाएंगे। अगर हम जो है अभी तक के अपने जहन में ये सोचते रहेंगे कि ये कोई काम कोई दूसरा करेगा तो हर उम्मत का हर फर्द ये सोच रहे हैं कि कोई दूसरा करेगा, और स्पेशली तहरीक इस्लामी के लोग जिन लोगों के अंदर वो सलाहियतें बहुत ज़्यादा वाफर मौजूद है और हम में से ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो लोग मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, यूथ है, हमारे अपने घर के बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, वो लोग उन लोगों को हम लोग अगर ये पूरे इस कैंपेन के अंदर इस पूरे एक्टिविज्म में अगर इन्वॉल्व करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे सामने बहुत फास्ट जो है हम जो अपनी दावत को लोगों तक के ले जा सकेंगे, क्योंकि अब जो है अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए एक इज्तिमा कॉल करना, एक धरना कॉल करना, एक इज्तिमा आम कॉल करने के बजाय ये मीडिया के जरिए से आप लाखों और करोड़ों तक के लोगों तक के आसानी से पहुंच सकते हैं। और इस वक्त तजल्ली पब्लिकेशन के नाम, तजल्ली प्रोडक्शन के नाम से आप लोग जानते हैं कि हैदराबाद में ये एक्टिविटी जमात ने शुरू की HRD के तहत बहुत सारी एक्टिविटी इस वक्त जमात ने शुरू की है। ह्यूमन रिसोर्स एक नई टीम बनाई गई है और उसके तहत जमात इस्लामी कोशिश ये कर रही है कि हमारे जो वेरियस टैलेंट्स हैं, ह्यूमन पोटेंशियल्स हैं, उसको हम लोग टैप करें और अलग अलग फील्ड में जो है उनको ट्रेन करें, एनहांस करें और उनके अंदर मोटिवेशन दें। ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का कैंप हमने एक दिल्ली में किया, एक हैदराबाद में किया, एक बेंगलोर में किया, एक पूना में किया। 5 मकामात पर सोशल
मीडिया एक्टिविस्ट के कैंप लास्ट ईयर जमात ने की, जिसमें 300 एक्टिविस्ट लोगों को बुलाया गया जो जमात के एक्टिविस्ट थे। उसमें खवातीन और मर्द दोनों शामिल रहे और वो 5 कैंप होने के बाद अब उसमें से कुछ 40-50 लोगों को मिला के अब दिल्ली में इंशाल्लाह एक अगला कैंप किया जाएगा। तो वहाँ ये काम हम लोगों ने ये जमात ने इस वक्त ये शुरू किया है कि जो सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं, तहरीक के अंदर जो लोग हैं, उनको हम लोग ट्रेन करें और वेरियस ई कैंपेन्स के अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आने वाले दिनों में तो यही कैंपेन बहुत तेजी के साथ हमारे सामने आएंगे और जो कुछ हो रहा है एवरी डे हो रहा है और हर रोज एक नया कैंपेन जो लोग चलाते हैं और पूरी की पूरी मिस इन्फॉर्मेशन होती है, पूरी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है, पूरा झूठ होता है जो ये लोग फैला देते हैं और सब लोग उसको सच समझना शुरू करते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों को यहाँ वहाँ से कट पेस्ट करके एक अजीब सी चीज़ बनाई जाती है। आप लोगों को परसों की मैं एक न्यूज़ बताता हूँ। परसों आज तालिबान एबीपी न्यूज़ पर एक न्यूज़ क्लिपिंग थी कि अली गिलानी साहब जो है कश्मीर के जो कश्मीरी रहनुमा है, उनके घर 5 करोड़ रुपये की नई करेंसी पकड़ी गई, रेट मारा और करेंसी पकड़ी गई और उसको जो है इन्होंने वो वायरल सर्च के नाम से लोग करते कि ये पूरा कैंपेन आरएसएस और बीजेपी के जितने व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर ये कैंपेन चल रहा था कि ये जो है उनके घर 5 करोड़ की करेंसी पकड़ी गई। ये जो फोटो था उसमें उनकी तस्वीर है और एक दूसरा फोटो है जिसमें नोट सब सजे हुए हैं पुराने और नए और एक पुलिस वाले हैं वगैरह वगैरह और सबको कट पेस्ट करके वो बनाया गया। बाद में खुद एबीपी की टीम जो है वो श्रीनगर गई और जाके पता की तो पता चला कि 4-5 साल पहले का कोई रेट का एक फोटो था और गिलानी साहब को तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, वो एक फोटो था और उसको जमा करके उन लोगों ने जो है वो ये बना दिया था। तो ये जो कैंपेन मुख्तलिफ किस्म के लोग चलाते हैं, अब इसका जवाब देने के लिए हमारे पास अगर हम लोग उस पर कोई काम ना कर सके और हम कोई राइट मैसेजेस लोगों के सामने ना दे सके तो उनके लिए तो आज़ादी है कि वो जो चाहे वो करते रहे। एक और आखिरी एक बात और मैं कह के अपनी पुस्तक खत्म करूंगा, ये जो हम लोग एक दूसरे को जंक फॉरवर्ड करते हैं ना, ये जो है वो जंक डिस्ट्रीब्यूशन का काम बंद कर दे। खुदा के लिए कोई भी मैसेज मिले, कोई भी व्हाट्सएप पे वीडियो मिले, उसकी तहकीक किए बगैर और वो पब्लिक के लिए आगे यूजफुल होगा या नहीं होगा उसको हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं और समझते हैं बहुत बड़ा सवाब का काम करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह फजर की नमाज के बाद बैठे और पता चला 10-15 वीडियो फलाने किसी दोस्त ने भेज दिया, उसमें से 10 से 15 चीजें ऐसी होती है जिसका कोई लेना, अगर मैं वो वीडियो ना देखूं तो मुझे मेरे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना मेरी इंफॉर्मेशन में कोई चीज होने वाली। लेकिन बस एक आदत बन गई है कि हम लोग जो सवाब की नियत से ये सारे काम करना शुरू किए और आजकल तो ऐसा है कि आप आगे 100 लोगों तक के फॉरवर्ड करेंगे तो उससे आपको सीधा जन्नत भी मिल जाएगी। हाँ, वो सीधा आपको ऐसा पूरा कैलकुलेशंस आ गए कि आप अगर अपने ये 10 भाइयों तक के या 100 भाइयों तक के फॉरवर्ड करेंगे तो आपको सीधा जन्नत मिल जाएगी। तो ये जो सवाब के नियत से जो लोगों का आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं खुदा के लिए, ये एक्टिविज्म नहीं है और ये जो है वो सोशल मीडिया एक्टिविज्म खुदा के लिए ये नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि जंक डिस्ट्रीब्यूट करने को हम जो है वो एक्टिविज्म समझते हैं तो ये नहीं है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अगर भाइयों को सवालात हैं तो जमात के अरकान कारकुन एक कसीर तादाद में मुस्तफ़ीन है, लेकिन उसके बाद उस पर कोई ये नहीं होता, नॉर्मली देखने में आता है। इवन सेंट्रल जमात का जो फेसबुक पेज है उसमें 50 से ज़्यादा लाइक ऐसे नहीं देखेंगे। क्यों है? आप इसका जवाब जानते हैं कि नहीं? मैं जानता हूँ एक से, क्योंकि इसको अगर हम विद इन जमात अगर कुछ इस पर बात करते हैं या कुछ सर्कुलर होता है तो शायद अभी कुछ दिनों से जैसे SIU के में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है मीडिया के तहत, लेकिन जमात में कुछ खास ऐसा देखने नहीं है। आज की जो पूरी गुफ्तगू थी वो इसी का जवाब था। जी। असल में हमारे यहाँ यही मसला है
कि हम लोगों ने अभी तक के अपने आप को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनाया नहीं। जब तक ये नहीं बनाएंगे ये 50 फेसबुक लाइक ही रहेगी। तब हम लोग ये समझते हैं कि ये ज़रूरत है हमारी और हम लोगों को इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जिस वक्त हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाएगी उस वक्त हम काम करना शुरू करेंगे। हमें से बहुत सारे लोग अभी भी इसको फजूल समझते हैं। ये समझते हैं कि ये सब फजूल बातें, हमारा घर से पुराने ज़्यादा अच्छा है और हम जो है वो इससे भी ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं। तो ये अलमिया है कि हमारा अपना कैडर, आप देखिए यहाँ 40-50 लोग हैं, कितने लोग उसको लाइक करते हैं जब आपकी कोई नई पोस्ट आती है फेसबुक पे, कितने लोग उसको उसके अपने आप को उसका मेंबर बना सकें। तो ये खुद हमारी अपनी वो सोच नहीं है कि इसके ज़रिए से भी जो है वो हम लोग अपने मैसेज को लोगों तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अभी जो डेटा लोग कलेक्ट करते हैं वो यही सारा डेटा कलेक्ट करके ओपिनियंस के ताल्लुक से ट्रेंड्स को बनाते हैं। वो लोग उसी से बताते हैं कि इस वक्त इस पर्टिकुलर न्यूज़ पे इतने लाइक आए, इसका मतलब ये कि ट्रेंड जो है सोसाइटी का इस चीज़ को पसंद कर रहा है। और अगर वो लाइक्स नहीं आते हैं तो फिर वो लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि समाज सोसाइटी जो है इसको दे आर नॉट एट ऑल टेकिंग नोटिस ऑफ दिस न्यूज़। बहुत ही आपने अच्छा दिया इस बात का। ये एक पॉसिबिलिटी ऐसी है जैसा ट्विटर का कोई मेन अकाउंट या फेसबुक का मेन अकाउंट, अगर हम स्टैब्लिश करते हैं, करने के बाद या सेंट्रल अमीर जमात की कोई उसमें स्पीच हो या उसकी कोई एक्टिविटी हो दिल्ली की हो या, तो उसको लिंक सारे मेंबर्स के लिए कंपलसरी करें, उसका अपना अकाउंट बनाए, फिर उसकी स्पीच सुने, फिर उसके लाइकिंग ना लाइकिंग। यानी एक ऐसा है कि एट ए टाइम अगर वहाँ से हुक्म आएगा तो से नो कसे बाशत यानी वो या अमेरिका में हो, अपना कोई मेंबर खलीज में हो, कोई और जगह हो, ये दोनों तरफ की एक्टिविटीज पॉसिबिलिटीज है कि ऐसे कर सकते हैं। असल ये इंटरेस्ट के ऊपर है। हम लोग अननेसेसरी वो लोग जो लोग उम्र रसीदा हैं, जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, उनके लिए ये बर्डन नहीं बनाना चाहते। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे अपने जो यूथ हैं, जो अंडर 40 हैं, वो लोग हैं जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, वो तो ये काम करना शुरू करें। एक सर्कुलर निकाल के सबको कंपलसरी कर दें कि नहीं हर एक आदमी हो और फिर ये कोई कानूनी फैसला हो जाए। ये सब आरएसएस के जो संचालक हैं, उनके जो मेन कोर टीम है, जरूरी नहीं कि वो सब लोग जो है वो फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर जो है एक्टिव हो और वो सब लोग जो उनकी न्यूज आती है उस पर लाइक करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे ग्रुप्स अपने दरमियान बना रखे हैं जो ग्रुप्स इस पर काम करते हैं और मासेस तक के अपनी बात को ले जाके मासेस की तरफ से जो है वो लाइक्स और उसके वो हासिल करते हैं। तो उनका अपना कैडर तो बहुत मुख्तसर है। तो हम लोग अपने सिर्फ कैडर पे इंसिस्ट करके कि कैडर ही ये काम करें। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम छोटे छोटे स्मॉलर ग्रुप बनाएं, जैसे दमाम में एक ग्रुप हो, ओवर में एक ग्रुप हो, यूएस में कहीं शिकागो में एक ग्रुप हो, दिल्ली में एक ग्रुप हो, हैदराबाद में एक ग्रुप हो, विजयवाड़ा में एक ग्रुप हो, छोटे छोटे ग्रुप हो, 6-7 लोगों की टीम हो और वो लोग वेरियस कैंपेन्स को चलाएं और सारा काम अलग अलग तरीके से करें। कोई सेंट्रलाइज करने की जरूरत नहीं है, वेरियस कैंपेन्स को चला सकते हैं और बातों को हम लोग मासेस तक से पहुंचा सकते हैं। और मैं ये बात इसलिए एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि हम तय करते हैं कि हम लोग इस हफ्ते इतने लोगों तक के पहुंचेंगे और वो इजीली अचीव हो जाता है। इतने 1000 हिट हमको अपनी वेबसाइट पे चाहिए तो हम लोग हासिल कर सकते हैं। उसके लिए वो प्रॉपर प्लानिंग करके अगर हम लोग करें तो वेरियस स्कूल्स के जरिए से किया जा सकता है और उसके लिए मरकज से सर्कुलर की हम लोग इंतजार नहीं करें और ये ना एक्सपेक्ट करें कि हमारा वो साथी जो बेचारा अभी ये प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, उसकी एज हो चुकी है, वो आप नहीं उसको आप जबरदस्ती उसको बोले कि अब आप वापस से इस प्लेटफॉर्म पे आए। लेकिन तो हम तो जो है वो तो कर सकते हैं और हम तो यहाँ आसानी से हम सबके पास आजकल स्मार्टफोन है और ये स्मार्टफोन की खूबी है कि स्मार्टफोन में ये सारे तीनों चारों अवेलेबल है। तो आपको सिर्फ अपना वो स्मार्टफोन में से 5-10 मिनट निकालना है और यू कैन यूज इट इजीली। तो सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं
कि कोई ऐसे बड़े प्रोग्राम हो सिविलाइज करें तो एक्टिविटी वर्ल्ड वाइड भी है। चलो वैसे ये इस पर जो मौलाना के अमीर जमात के खुतबा तो अभी डालना शुरू कर दिए वेबसाइट पे, एवरी जुमा का खुतबा उस पर अपलोड कर रहे हैं, लेकिन उसको फेसबुक पर तो नहीं, फेसबुक पे तो नहीं डालते, उस पर वेबसाइट पर आते हैं। वैसे फेसबुक उसका मीडिया भी नहीं है वीडियो का, उसके लिए यूट्यूब हो सकता है। आप कुछ कह रहे हैं और जी जी मेरे सवाल कि ये सोशल मीडिया हो या व्हाट्सएप वगैरह जो भी है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहना चाहते हैं कि ये ट्रैक होता है और शायद इसमें हमें कोई परेशानी ना हो कि जवान को कोई नुकसान ना पहुँचे। बहुत सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, तो किस हद तक मतलब हमें एहतियात करना चाहिए और इस वजह से हम इसमें आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं और हमें बहुत सारी कहने के अवेयरनेस भी नहीं होती है, तो इसलिए क्या करना चाहिए? अभी इस वक्त सादत साहब इधर आने वाले थे लेकिन वो नहीं आ सके। करीमुल्लाह साहब पिछली मरतबा दौरे पर आए थे, HRD के जो जिम्मेदार हैं, तो हम लोग अभी गर्ल्स की सतह पर भी HR का इसका ग्रुप बना रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो कमेटी भी फॉर्मलाइज हो जाएगी यहाँ गर्ल्स की सतह पर। तो आप जो है अपने शहर की सतह पर तो ये कर सकते हैं कि आपके जो शहर के जिम्मेदार हैं उनके तहत एडिटोरियल कंटेंट को फाइनल अपलोड होने से पहले उनको दिखा के उसको अपलोड करें, तो एटलीस्ट सिटी के लेवल पर उतना तो आप लोग कर सकते हैं। और कोई अगर नेशनल कैंपेन है तो फिर वो नेशनल टीम उसको हैंडल करेगी, लेकिन आप सिटी के लेवल में कोई कैंपेन तय करते हैं और आपका शहर का जिम्मेदार उसको फाइनल कंटेंट को एक मरतबा देख लेता है, इसको कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। बहुत ज़्यादा कानूनी एतबार से अगर हम लोग इस मीडिया को इस्तेमाल के बारे में सोचते रहे तो हम लोग बहुत सारे फिर कर नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी क़यादत हर जगह इतनी मैच्योर्ड होती है अल्हम्दुलिल्लाह हर शहर में कि वो इतना तो कैपेबल होती है कि किस कंटेंट को आउट करे, किसको ना करना, उसको एडिट करना है नहीं करना, उसमें कौन सी चीज़ आनी चाहिए, उतना तो वो गाइड कर सकती है। उसके लिए मरकज़ दिल्ली तक के जाने की ज़रूरत नहीं है। जी ओपिनियन पोल्स पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल जितने भी ओपिनियन पोल्स आते हैं उसके अंदर आपको उसके अंदर हमेशा ऐसा होता है आपको नाम बताना है आपका या ईमेल एड्रेस देना है, तो उस पर रिस्पॉन्ड करना है या नहीं करना है और फिर उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। अब ये ओपिनियन पोल किसने बनाया है? बात सही है आपकी, पिटीशन बल्कि 70% ओपिनियन पोल्स जो है वो फेक होते हैं, जो 100% राइट, 20-30% ओपिनियन पोल ऐसे होते हैं जो सही होते हैं। तो पहले तो उसकी ऑथेंटिसिटी पता करनी चाहिए। अभी जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का ओपिनियन पोल था अबाउट भोपाल, टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू वो लोग रन कर रहे थे एंड दे वांटेड टू हैव ओपिनियन फ्रॉम, तो वो माशाल्लाह उसके अंदर जो नेगेटिव उसका जो दिया है पूरे हिंदुस्तान के सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो लोगों ने इसको फेक एनकाउंटर के ऊपर ज़्यादा जो है वो उस ओपिनियन को शेयर किया। तो जैसे इस किस्म के जो कोई ऑथेंटिक मीडिया एजेंसी कोई ओपिनियन पोल्स को कर रही है, कंडक्ट कर रही है, हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और कई मरतबा हमारे व्हाट्सएप पे कई दोस्तों ने इसमें इंकरेज किया कि भाई ये वाले पोल में आप पार्टिसिपेट करो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ओपिनियन पोल था उसमें हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए था। हमें अपनी डिटेल देने में क्या मसला है, मेरा नाम और ये आ जाएगा, मोदी की लिस्ट में आ जाएगा, तो ये मेरे लिए जन्नत की बात है। तो ये तो है, मैं अपना नाम और ये क्यों छुपाऊँ, उनको मालूम पड़ जाएगा तो पढ़ने दो, अच्छी बात है। अगर मेरा नाम नेगेटिव लिस्ट में इन लोगों की आता है तो ये तो मेरे लिए एक फख्र की बात है कि मैं जो है वो उनकी नेगेटिव लिस्ट में, डोंट वरी, वी नीड टू शेयर। लेकिन उसमें भी जो नेगेटिव जो उस किस्म के ओपिनियन पोल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फेक होते हैं, जो हमारे अंदर एक तरीके का एक फेक वो बनाना चाहते हैं, माहौल बनाना चाहते हैं, उससे भी वो भी समझ में आ जाता है, लेकिन कम्युनिटी समझ जाती है। सिस्टम की तरफ से कोई सवाल भाइयों की तरफ से पिटिशंस वाला तरफ बताते हैं कितना इफेक्टिव रहता है कि नहीं, जो change.org में आता है या पिटिशन ऑनलाइन ये जो घूमते हैं ये कितने इफेक्टिव होते हैं, कितने
इफेक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं हो। अभी तक के जो ऑनलाइन पिटीशन जो हिंदुस्तान में स्पेशली, वेस्ट में इसका बहुत अच्छा रिवाज है, स्पेशली यूएस में और यूके में ऑनलाइन पिटीशंस का एक अच्छा ट्रेंड है और वहाँ की कम्युनिटी और वहाँ के लोग बाकायदा सीरियसली इसको लेते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अभी तक के ऑनलाइन पिटीशंस को बहुत ज़्यादा वो नहीं सपोर्ट नहीं मिला है। और मैंने अभी हाल में जितने क्या बोलते हैं ये पिटीशंस को देखा है, तो मुझे यहाँ ये भी अभी तक मैंने नहीं सुना कि किसी कोर्ट ने जो है वो ऑनलाइन पिटीशंस को एज ए वो एक फिटनेस की हैसियत से या एक ट्रेंड की हैसियत से एक्सेप्ट किया है, तो वो शायद मैंने अभी तक सुना भी। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में स्पेशली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो वो था और उसमें जो बातें आई थी, तो वो अभी उम्मत इसके लिए खड़ी हो गई है और कर रही है, ऑनलाइन पिटीशन तैयार कर रही है या डूइंग इट। सो लेट्स पार्टिसिपेट। अच्छा, अगर पर्सनल बोर्ड जैसी कोई बॉडी है और वो ऑनलाइन पिटीशन मांगती है तो हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए, इट विल बी यूजफुल। सिस्टर्स की तरफ से टाइम्स ऑफ इंडिया में जो न्यूज़ आते हैं उसके ऊपर जो कमेंट्स होते हैं, अब कमेंट्स का जब जवाब देते हैं बहुत सारे गैर मुस्लिम बहुत अलग अलग तरह के कमेंट देते हैं, कॉल्स होते हैं, राउंड होते हैं, उसको किस तरह से इनकाउंटर किया जाए, उसको किस तरह से रिप्लाई किया जाए? क्या इंडिविजुअल लेवल पे तो किसी से डिफरेंटली तो दे दिए, इज्तिमाई तौर पे हमारी क्या पॉलिसी हो सकती है, इस तरह का किस तरह उसको फेस कर सकते हैं? कोई मीडिया रिस्पांस टीम बनाई जाए सिटी के सतह पर और वो 2 से 3 अखबारों को डेली बेसिस पे पढ़ें, उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं उसमें जो है रिस्पांस क्रिएट करें, एडिट करें और फिर उसमें उसको अपलोड करें। ये शहरों की सतह पे पहले से होता है, जमात का ये काम बरसों से है। मीडिया रिस्पांस टीम होती थी, मैं खुद जानता हूँ, हैदराबाद में थी, बम्बई में थी, दिल्ली में थी, दिल्ली में अभी भी है, अनवरुल हक बेग साहब हैं। मीडिया रिस्पांस टीम होती है जो रिलीजियस आर्टिकल्स के ऊपर उस पर्टिकुलर कॉलमनिस्ट और एडिटर के लिए अपने कमेंट को पोस्ट करते हैं। तो ये इंडिविजुअली भी लोग करते हैं और करना चाहिए। एज ए जफर एक शख्स है जो हमारी टीम में बैठता है और उसको जो है वो इज वेरी एक्टिव ऑन दिस। करना क्या है, उसने आर्टिकल देखा, उसके नीचे ब्लॉक है, उसको 3 लाइन का एक अपना मैसेज है, 1 लाइन का डालना है और उसको खत्म। वो कोई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से थोड़ी है, वो उसके एज ए नाज़िम उसकी तरफ से एक रिस्पांस है और वो दे, उसमें कौन रोकने के लिए कौन रोक रहा है? सो वी शुड डू। हम लोग अभी रविश कुमार के केस में जो आरएसएस और बीजेपी वालों ने जो उसको बहुत बुरी तरह से उसको पूरे आप देखेंगे उनके ट्विटर अकाउंट, उनके फेसबुक अकाउंट रखा जाता है, रविश कुमार जैसे लोगों को उनको उन्होंने बहुत अब्यूज किया और बहुत गंदी गंदी गालियां दी। तो अब अगर अच्छा ये लोग हक के लिए आपके लिए बात कर रहे हैं, ये हक के साथ दे रहे हैं, भोपाल के केस में इन्होंने खुल के कहा, हर केस में लोग कह रहे हैं। अब अगर हमको लग रहा है कि यार उसने बहुत अच्छा कॉलम लिखा है और वो कॉलम जो है वो पढ़ने के बाद हमको फील किया कोई तो हमारे लिए खड़ा हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया में से, और हम लोग उसमें 2 लाइन टाइप करने के लिए नज़म से इंतजार करें कि आमिर बेग साहब मेरे को परमिशन देंगे तो मैं करूँगा, वो फलाने कोई टीम होगी तो वो आके मेरे को बोलेगी तो मैं करूँगा, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। मैं अगर उसको पढ़ लिया और आर्टिकल पढ़ने के बाद नीचे कॉलम में आजकल तो यही सब लोग पढ़ते हैं और वो जब से हम लोग वो आर्टिकल खत्म होता है तो नीचे वो कॉलम आ जाता है जिसमें आपको 4 लाइन टाइप करनी है, आपका ईमेल आईडी डालना है और पोस्ट करना है आपके कमेंट। तो जहां हमको दूसरे गैर इतनी ज्यादा गालियां दे रहे हैं तो हमारी कम्युनिटी के लोग क्यों नहीं उनकी तारीफ करें, क्यों ना उनकी हिम्मत अफजाई करें? उसके लिए इंतजार क्यों किया जाए कि हमारे कोई सर्कुलर आएगा और या तो मरकज की कोई दिल्ली की कोई टीम उसका जवाब देगी? वहां तो वो ये नहीं कह रहे ना कि अब जमात इस्लामी का रिस्पॉन्स लिखे। जज़ाकल्लाह खैर।